Hello student, today we'll see partnership final account problem number 3. Already I have explained problem number 1 and 2. Let's start. This is your question in front of you. From the following trial balance, adjust given below Reena and Aarti. Now what are the partners' name? Reena and Aarti. You are required to prepare trading profit and loss and the balance sheet. This is our trial balance. See the date of trial balance. That means we have to write 31st March 2019 in trading account, profit and loss account and the balance sheet. This is debit balance and this is a credit balance. This will go either in trading account debit side or profit and loss debit side or the asset. Credit side, it will go either in trading credit side or profit and loss credit side or liability. Let's start. These are the adjustment has a 2 effect and posting has a 1 effect. So we'll start from the debit balance. Purchase, कहाँ लिखना है हमें ये परचेस है, दैट मीन्स परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल का होता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट. सो विल गो ट्रेडिंग अकाउंट. Now which side? Of course trial balance say debit side, so we'll write debit side. Then sundry debtors, balance sheet asset side. BA means balance sheet asset side. Then sales return, of course minus from the sales. So ये जो sales return है हम sales में से minus करेंगे. So here we can understand कि sales we have to write inner column. So put a, see here सर्कल किया, इसका मतलब आपको समझेगा कि हमें इनर कॉलम में ग्रॉस कॉलम में लिखना है. नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक, bad debts, land and building, furniture, discount. Now discount will go profit and loss account. Royalty, royalty means ट्रेडिंग अकाउंट. रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मतलब अगर हमने किसी से कोई अथॉरिटी ली है कि उसकी टेक्निक हम यूज करें, अलाउ करें, तो उसके लिए हमें उसको कुछ तो पेमेंट करना होता है. सो दिस आर कॉल्ड रॉयल्टी. ओके. द नेक्स्ट इज रेंट. दे हैव नॉट गिवन फैक्ट्री रेंट. अगर फैक्ट्री रेंट देते तो ये ट्रेडिंग में जाता, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सा रेंट है, सो एज्यूम करो दिस इज ऑफिस रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेम अबाउट सैलरी. wages given to the worker and workers are available in the factory से related trading account होता है, so wages will go trading account. Insurance of course profit and loss account. अगर उन्होंने मेंशन किया होता फैक्ट्री इंश्योरेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता. नाउ ड्रॉइंग एज यू नो माइनस फ्रॉम द कैपिटल, सो इट विल गो बैलेंस शीट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में क्यों जाएगा? क्योंकि हमको ये कैपिटल में से माइनस करना है. ऑलवेज माइनस ड्रॉइंग फ्रॉम द कैपिटल. Next is the cash at bank and of course cash in hand. Both will go balance sheet asset. Very simple. Posting अगर परफेक्ट होगा तो 90% चांस होते हैं आपके टैली होने की. ओके. नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड. सेल्स, so of course trading account credit side. Creditors, it's a liability, so balance sheet liability. Purchase return will minus from the purchase, so purchase return. Then RDD, reserve for doubtful debts. This will go profit and loss, but which side? Credit side. This is called old RDD, so we'll go credit side. The discount again, see here, यहाँ पे भी डिस्काउंट दिया है, यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, बट here they have given debit side, मतलब एक्सपेंसेस है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड. हमने डिस्काउंट अलाउड किया, कस्टमर को डिस्काउंट दिया. And here we write credit side, that means discount received. हमें किसी का डिस्काउंट, हमें किसी ने डिस्काउंट दिया, so this is a income. So nominal account debit the expenses and credit the income. So this is a income. ये 50 रुपए हमें मिले हैं डिस्काउंट और ये 1000 डिस्काउंट हमने किसी को दिया है. ओके. सो विल राइट दिस डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, सो विल राइट क्रेडिट साइड. ये डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे. हमें ट्रायल बैलेंस की बात माननी है. Okay. Now again commission, this is also income, commission received. So both will go profit and loss. And finally capital account, as you know it will go balance sheet. अब ये तो आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट 3 चैप्टर्स देखे, सब में कैपिटल उन्होंने लाइबिलिटी साइड ही लिखा है. डन. So this posting done,
Now we'll move to the closing adjustment. These are the basically adjustment. जो adjustment है यहाँ पे हम लोग सी पॉइंट रखेंगे. सी ये रेड कलर में मैंने पॉइंट रखा है 2 पॉइंट्स. दैट मीन्स वी हैव टू लीव 2 लाइन्स. 1 मीन्स वी हैव टू लीव 1 लाइन. सो देखो ये जैसे जैसे एडजस्टमेंट पढ़ोगे आप समझ में आएगा कि मिस ने कहाँ क्यों किया है. ठीक है. सो ये जो मैंने रेड कलर में बताया है ये सब हमें इनर कॉलम में लिखने हैं बिकॉज देयर आर एडजस्टमेंट. सो वी नीड टू आइदर ऐड और डिडक्ट समथिंग. Let's start. Now which account you have to open? Of course trading and profit and loss. This you can make separate also or you can make कॉमन ऑल्सो. ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे लिखो, या अलग से आपको लिखना है, अलग से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज द बैलेंस शीट. वी हैव टू राइट द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. इनर कॉलम, आउटर कॉलम, ग्रॉस कॉलम, नेट कॉलम. ओके ओके. नाउ विल स्टार्ट. नाउ विल फर्स्ट फिनिश ट्रेडिंग अकाउंट. जो भी ट्रेडिंग के आइटम है ना पहले हम वो फिनिश करते ताकि फिर कंफ्यूज नहीं होते बार बार इधर से उधर. ये अकाउंट से हम नहीं जाएंगे. फर्स्ट विल फिनिश द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो फर्स्ट परचेज. सी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है एंड विच साइड? डेबिट साइड. सो टू परचेज ऑलवेज लीव 1 लाइन फॉर ओपनिंग स्टॉक बिकॉज ओपनिंग स्टॉक से ही हमें शुरुआत करनी है. सो एक लाइन लिखना है. नहीं दिया है तो लेट इट बी, दिया है तो हम लिखेंगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज सन्ड्री डेटर्स. ये तो असेट में जाएगा. यस दिस इज अ सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में. सो विल माइनस हियर सेल्स रिटर्न. यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे जब मिलेगा तब, फिलहाल सेल्स रिटर्न. देन ओपनिंग स्टॉक यस गिवन. नाउ विल राइट ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम बिकॉज नो एडजस्टमेंट. ओपनिंग स्टॉक को आपको एक बार भी एडजस्टमेंट नहीं है आपके सिलेबस में. ओके. देन बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट. यस 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 दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. रॉयल्टी. So this is also right debit side, outer column, no adjustment. Done. Then yes, wages. See here, wages एक point किया है, that means there is adjustment. So write 800 inner column. I guess finish हो गया हमारा. Okay. So we finish all trading item. ठीक है. आप आपके पेंसिल से कट भी कर सकते हो कि इतना हमारा हो चुका है. So trading account की posting done. Now we'll move to the profit and loss. चलो अब जो वही आइटम देखेगी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेगी. सो विल स्टार्ट. किधर है प्रॉफिट? यस बैड डेट्स. इट्स कम प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड? डेबिट साइड. सो विल गो डेबिट साइड. देन डिस्काउंट. सी आउटर कॉलम बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट. बैड डेट्स में है एडजस्टमेंट, न्यू बैड डेट्स ऐड होगा यहाँ पे. ठीक है. देन सैलरी. ओके. रेंट इज ऑल्सो देयर. सो रेंट. देन सैलरी. Then insurance. Okay, one more. No. Okay, we finish debit side of profit and loss account. ठीक है. जैसे जैसे होगा ये आप कट किया करो आपके पेन टेक्स्ट बुक में. ओके. सो डन. नाउ विल मूव टू द बैलेंस शीट. देखो अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो हमने सब कुछ डेबिट में ही लिखा है अभी तक. ठीक है. ओके. नाउ बैलेंस शीट के आइटम देखो. बैलेंस शीट डेबिट साइड मीन्स असेट साइड. सो यस डेटर्स लीव 3 लाइन्स. 3 एडजस्टमेंट है 1 2 3. दैट इज व्हाई आई पुट 3 डॉट. ठीक है. सो ये 3 लाइन छोड़ो सन्ड्री डेटर्स के लिए. देन लैंड एंड बिल्डिंग. सी हियर मैंने लाइन छोड़ दी है. देन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर. आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग को है शायद डेप्रिसिएशन होगा. ठीक है. देन और बैलेंस शीट कहाँ पर गई हमारी? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. बट बिफोर दैट ड्रॉइंग. व्हाट वी हैव टू डू? ड्रॉइंग. See cash at bank and cash in hand I have written here. Now what about drawing? ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग? डेबिट में दिया है बट दैट डजंट मीन हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे. विल माइनस फ्रॉम द कैपिटल. सो माइनस करो. यहाँ पे ये फॉर्मेट बना कर रखो. कैपिटल रीना एंड आरती. ये इन डेबिट साइड दे हैव नॉट गिवन कैपिटल. कैपिटल की अमाउंट कहाँ से मिलेगी हमको? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से. तो ये जब मिलेगी तब हम फिल करेंगे. फिलहाल तो नहीं दी है सो लेट इट बी. ठीक है. अभी सिर्फ ड्राइंग हमें माइनस करके रखना है. सो वी फिनिश ऑल डेबिट साइड. एक बार चेक करो कोई आइटम हमारा बच तो नहीं गया है. ठीक है. सो वी डन विथ अ डेबिट बैलेंस. नाउ ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड. सो लेट्स स्टार्ट क्रेडिट. सी नाउ विल स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड. सेल्स क्रेडिट साइड गिवन. सो राइट ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 58,200 minus 1000. So you can write 57,200. Done. नाउ और कहा है ट्रेडिंग. पहले ट्रेडिंग ही खत्म करते. परचेस रिटर्न. सी या परचेस रिटर्न माइनस परचेस रिटर्न
500 माइनस करो, दैट मीन्स 35,000. देन फिनिश, ट्रेडिंग बैलेंस का क्रेडिट साइड भी फिनिश हो गया. नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, yes, RDD, we have to write credit side. So by RDD, this is called old RDD. ट्रायल बैलेंस में जो RDD होती है वो ओल्ड RDD होती है, और एडजस्टमेंट में जो RDD होती है वो न्यू RDD होती है. ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. देन डिस्काउंट क्रेडिट साइड, कमीशन क्रेडिट साइड. अंडरस्टूड? सो जो क्रेडिट मतलब जो ट्रायल बैलेंस बोलेगा क्रेडिट वही हमें करना है. दे सेड कि डिस्काउंट कमीशन विल कम क्रेडिट साइड, सो विल राइट क्रेडिट साइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, okay, now what we can do, finish. Now we'll see the what left now, liability side. So अब देखो बैलेंस शीट में sundry creditor one dot है, that means inner column we are supposed to write. Then capital, yes, we got the capital 50,000 and 30,000. So write here 50 and 30,000. ठीक है, but don't hurry, ये हमें अभी भी क्लोज नहीं करना है, इसमें हमको नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड करना होता है. सो लेट इट बी, ये फिलहाल ऐसे ही रखो. ओके, सो आई होप पोस्टिंग डन, 10 मिनट्स में पोस्टिंग हो गई. Now we'll move to the adjustment. Now see the first adjustment, closing stock. This is a compulsory adjustment आती है. So stock है, तो now we have two accounts and one statement, trading account, profit and loss and the balance sheet. ये तीनों में से ही हमें दो इफेक्ट देने हैं. So stock है, so factory से related है. If opening we are writing debit side, closing will write credit side. By closing stock 22,000. Then every adjustment has a two effect. Now this is a stock. So stock means asset. So we'll write closing stock 22,000. Okay, done. गलती से बाय आ गया. Finish. Now next one. Write off 900 for a bad dates. Create RDD for the daters. So now 900 as a bad dates. So minus from the daters. So see here, first minus from the daters 900. So we have done 900 and create RDD rupees 1000. So again we have to minus 1000. इसका मीनिंग क्या है कि 900 तो श्योर शॉट लॉस हुआ है, बैड डेट्स हुआ है, कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, 900 नहीं पे किया है. एंड न्यू आरडीडी का मतलब क्या है कि नाउ दे आर थिंकिंग, रीना एंड आरती आर थिंकिंग कि यस मे बी और हमें लॉस हो सकता है. सो उन्होंने पहले ही प्रोविजन कर रखी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस. तो ये 900 एंड 1000 दोनों माइनस करना है 40,000 में से. सो कितना आएगा 38,100. डन. सो दिस ऑल आर लॉसेस. सो ऑफ कोर्स लॉस कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में. टू बैड डेट्स, यहाँ पे ये बैड डेट्स ऐड करो एंड टू आरडीडी 1000. ठीक है, देखो ये एक इफेक्ट 900 का यहाँ पे दिया, ओल्ड में हमने न्यू बैड डेट्स ऐड कर दिया. सो नाउ इट्स टोटल बिकम 1400 एंड न्यू आरडीडी एज अ 1000. Don't get confused. This is the old RDD which is given in the trial balance. This is the new RDD which is given in the adjustment. Now next one. We already finished this two. Create. Now this is a new for you. अब ध्यान से देखना है. Create provision. Again they make a provision for discount on debtors 3% and creditors 5%. ठीक है. So उन्होंने डिस्काउंट भी दिया, डेटर्स को प्रोविजन कर ली. कितने परसेंट, 3%. एंड क्रेडिटर्स ने हमको कितना डिस्काउंट दिया, 5%. सी, डेटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं और क्रेडिटर्स से हम डिस्काउंट लेते हैं. ओके, सो नाउ discount on debtor, let's see. Already we got this amount 38,100. Now see the working note, डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो अब हमें 38,100 है, उस पे 3% डिस्काउंट देना है कस्टमर को. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 40 पे क्यों नहीं किया. सो मेक अ सीक्वेंस. फर्स्ट वी हैव टू माइनस बैड डेट्स, देन आरडीडी एंड देन डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अगर पेपर में उल्टा पुल्टा दिया है तो भी हम यही सीक्वेंस से जाएंगे. ओके, नाउ लकीली उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट बैड डेट्स, देन आरडीडी and then discount on debtors. लेकिन अगर सपोज उल्टा पुल्टा होता तो भी फर्स्ट विल कैलकुलेट बैड डेट्स,
then RDD and then whatever the balance gets here 38,100 उस पे कितना करना है 3% discount. So 3% discount, it comes 1143. So we'll minus 1143 and final we get the amount of debtors 36,957. Then all we have to minus. So ये दोनों हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे, तो ऑफ कोर्स ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में. विच साइड? ऑफ कोर्स डेबिट साइड. नाउ सेम अगर क्रेडिटर्स, विल सी क्रेडिटर्स का भी वही करना है. 25,700, हाउ मच दे सेड? डिस्काउंट 5%. सो डिस्काउंट 5%, ये भी माइनस करना है. इट्स बिकम 24,415. I hope you understood discount on debtors and discount on creditors. Then now every adjustment has a two effect. So where will go? Now it's very simple. This is we allowed. हमने कस्टमर को दिया है. So this is expenses for us. So this will go debit side of profit and loss. And this is a income for us. Creditor ने हमको allowed किया discount. So this is a income for us. So this will go credit side. See here. Debit side because we allowed the discount and credit side because we get the discount, we received the discount. So income hai. Profit and loss is a nominal account. Debit the expenses and credit the income. Done. So ये न्यू एडजस्टमेंट है, तो आप इसको स्टार मार्क कीजिए. एग्जाम में जाने से पहले फिर एक बार रिपीट कीजिए. वेरी सिंपल. Now we'll see, of course, outstanding wages and salary are very easy. Outstanding है, we have to add in wages and add in salary. चलो let's start. Wages में add करो outstanding, that means we have to pay in future. So total 31st March 2019 तक wages कितना है 1,500. But this we need to pay out. ठीक है, so outstanding always add. सेम अबाउट सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन वी हैव टू ऐड. ये भी पे करना बाकी है बट पे तो करनी है फ्यूचर में. ठीक है, सो 800. सो बोथ वी हैव टू पे इन फ्यूचर. टेंशन आ गया हमें. सो विल राइट हियर लायबिलिटी बिकॉज दिस वी नीड टू पे. वी मीन्स रीना एंड आरती. सो फ्यूचर में पे करना है. जो भी हम फ्यूचर में पे करेंगे दैट वी आर सपोज टू राइट इन लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स टेंशन. देखो क्रेडिटर्स भी पे करना है, ये दोनों भी पे करना है. सो टेंशन है ना. So this will go liability. Now next, insurance is paid. Okay, this is also new for you. ये थोड़ा सा जैसे advertisement कैसे for 2 years pay किया and we have to calculate for 1 years. This is similar. Insurance is paid for 15 months. Now the basic knowledge is that we have to open an account only for 12 months. है ना, ये हम जो दो देख रहे हैं वो 12 months का ही है. But here they paid the insurance for 15 months and effect अप्रैल से स्टार्ट हो गया है. ठीक है, सो अप्रैल 18 टू मार्च 19 कितने मंथ्स हो गए 12 मंथ्स हो गए. बट यहाँ पे उन्होंने तो 15 मंथ्स का पे किया है, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का पे किया है. तो देखते कैसे करना है. सी वर्किंग नोट. फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कन्वर्ट करना है. 15 मंथ्स में उन्होंने कितना पे किया 1500. सी कहाँ से आ गई ये इंश्योरेंस की अमाउंट. दे हैव गिवन इन ट्रायल बैलेंस. देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है 1500 एंड हियर दे क्लियरली मेंशन दिस इज पेड फॉर 15 मंथ्स. सो 1500 इज फॉर 15 मंथ्स. तो एक मंथ का अंदाजे कितना रहेगा, 1 मंथ का अंदाजे 100 रुपीज रहेगा. सिंपल है ना, डिवाइड करो 1500 को 15 मंथ से. सो एक मंथ का 100. हमें ये 15 मंथ का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कितने मंथ्स का लेना है 12 मंथ्स. और हमें तो मिल चुका है 1 मंथ का. तो 12 मंथ्स का 12 मंथ्स इंटू 100, तो हमें सिर्फ 1200 पे करने. तो एक्चुअल हमारा खर्चा उस साल में कितना है 1200. बट पे कितना किया हमने 1500. बट हम आउटर कॉलम में हमें सिर्फ क्या देखना है 12 मंथ्स का हिसाब देखना है. सो विल राइट ओनली 12 मंथ्स हिसाब 1200. डन. सो व्हाट इज दिस, क्या हो गया 300. दिस कैन बी कॉल्ड एज एडवांस. एडवांस इंश्योरेंस. ये एक्स्ट्रा हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से लेस करो. अंडरस्टूड. नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. अब इसका इफेक्ट ऑलरेडी हमने पे किया है, सो नो टेंशन. अगले 3 महीने का भी पे किया है. फॉर एग्जाम्पल आपने 12th में FY BCom की फी भी पे कर चुके हैं. सो देर इज नो टेंशन एंड नो टेंशन मीन्स लाइब सॉरी असेट. टेंशन मतलब लाइबिलिटी एंड नो टेंशन मतलब असेट. सो ऑलरेडी वी पे, सो विल राइट असेट साइड. अंडरस्टूड. आई होप आपको ये समझ में आया है. दिस इज कॉल्ड एडवांस इंश्योरेंस.
Now next, depreciate land and building 5%, very easy. Land and building पे 5% इस पर निकालो. ठीक है, यहाँ पे explanation की जरूरत नहीं. This is expenses, so we'll write debit side of profit and loss account. Very simple. Now Reena and Aarti sharing in their capital ratio. See here, capital ratio में उन्हें करना है sharing ratio. कहाँ है यहाँ पे capital? Yes, 5:3. 50,000 and 30, ये चारों zero हटा दो. So what is the ratio? 5:3. और कुछ है क्या? इसको और कम नहीं कर सकते हम लोग, है ना, डिवाइड और नहीं हो सकता है. तो their ratio is 5:3. See whether they have given any hidden adjustment. नहीं, hidden adjustment नहीं दिया है. So now close the account. Credit या debit, which side comes heavy? See here, we can see here, यही heavy आ रही है. So 79,200. So credit minus debit. So we get the gross profit 23,900. This will go credit side because debit, every adjustment has a two effect. Every debit has correspondence credit. So वहाँ पे हमें debit मिला है. So we'll go credit. Transfer here. Done. Because this is a profit, so profit will comes credit side. Debit the expenses and losses, credit the income and gain. So here now make a total of this. ये सब पकड़ के सबकी total करनी है. So 26 to 50 minus this all, so it get net profit 13,592. This we need to divide among the partners. Already we know the ratio as per capital ratio, 5:3. So divide करो 5:3. See here, 5:3 I have given here. डिवाइड करना आता है अब आपको, ठीक है. मेक अ टोटल, राइट आउटर कॉलम एंड बैलेंस शीट गेट टैली. डन. सो विद इन 20 मिनट्स वी फिनिश आवर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस. डन. आई होप आपको समझ में आया है. नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो राइट इन कमेंट बॉक्स. शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ाई स्टार्ट करे. ओके. और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आए. बेल आइकन प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.